अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। मेरे इर्द गिर्द जो देख रहे हैं ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो आम शहरियों की चोरी हो चुकी हैं। AVLS विंग ने एक ऐसा चोर गैंग पकड़ा है जिसने 200 के करीब चोरी की वारदातें की और अरबों रुपए की गाड़ियां चोरी की। आज हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे वो कौन सा गैंग है जो इतनी सारी गाड़ियां चोरी करता था। शहर लाहौर में जो चोरी की वारदातें, कार चोरी की वारदातें होती हैं, उनके बड़े अहम रुकन जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए AVLS ने। इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान मोटा। उस्मान मोटा। मोटा कैसे तुम्हारा नाम पड़ गया? मोटा है ऐसा। अच्छा, तो की करना है? गड्डी चोरी। किन्नियां गड्डियां चोरी की? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 150 ਹੋਣੀ 150 ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ गिरफ्तार ਹੋਇਆ? ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕੁਝ ਲਈ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ 2007 ਚ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ? ਉਸ ਗੱਡੀ ਚੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ? ਚੋਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਚੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ? ਹਾਂ। ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ? ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸੈਂ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ। ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12:30 1 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸੱਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਵੋ ਤੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ? ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਚੋਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਹੌਰ? ਸਭ ਦਾ ਡੁੱਬਨਪੁਰੇ 'ਚ। ਡੁੱਬਨਪੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਕਾਰ ਚੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੋਬਾ ਹੁਣ ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਣੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਾਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੀ। ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹ 7। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਗੈਂਗ 'ਚ ਹੈ ਨਾ 4। 4 ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਫੜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? 2 ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ। ਪਾਊਡਰ ਪੀਣਾ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? 16 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3। ਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਕਦੀ ਹੋਈ? ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਬੜੀ ਦਫਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ यहाँ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ? ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ? ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ? ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ? ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ? ਖਾ ਕੇ। ਖਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਕੇ? ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿਣਾ? ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਕੋ ਅਮਲਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਕਦੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਲਾਨ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਕੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮੁੜ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੈਂਪੇ ਗਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਂ, ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ? ਸੁਲਤਾਨ। ਸੁਲਤਾਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ? ਬਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੋਰ ਸੈਂ, ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਾਬੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਰੈਕੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੈਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆ ਰੈਕੀ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਹੈ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਕੁਛ। ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਪਾਊਡਰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਬਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਤੇ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਰ ਲੈਣ। तू नहीं करनी। नहीं। मुलजमान की आपने बात सुनी कि जो बहुत मशहूर गैंग है मोटे का, ये कहना इसका ये है कि जब वो जेल में जाता है तो वहाँ पर भी मंशियात का फ़रोख्त करता है, मंशियात बेचता है, और वो मंशियात बेचता है जो कम से कम जेल से बाहर भी फ़रोख्त करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। वहाँ पर भी पकड़ा गया, लेकिन दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाता है जहाँ पर जाकर ये दोबारा मंशियात फ़रोशी जो है करता है और ख़ुद भी मंशियात का इस्तेमाल करता है। उस्मान मोटा जो बहुत मशहूर कार चोर है, इससे हम कहते हैं कि ये किस तरह से किसी शहरी की गाड़ी को चोरी करता है, किस तरह से चाबी लगा के उसको खोलता है, ये हमें करके दिखाए। आए आपको भी दिखाते हैं। मुल्क भर में जो बड़ी गाड़ियां हैं उसको चोरी करने वाला एक गैंग है जिसका सरगना है सैफुर रहमान। उसके एक रिसीवर को AVLS पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस की हिरासत में है मुलजिम। इससे हम पूछते हैं कि ये किस तरह से उस गैंग का ये रुकन था, किस तरह से ये तरीका वारदात इनका था गाड़ियों को चोरी करने का। क्या नाम है तुम्हारा? फजल खान।
फजल खान, क्या करते थे तुम? सैफुर रहमान तो बहुत बड़ा चोर है और अरबों रुपए की गाड़ियां उसने चोरी की हैं पाकिस्तान भर से, तो तुम क्या उसके लिए काम करते थे? जी, मैं सर्विस स्टेशन का काम करता था। मेरा काम था ये गाड़ियों का धोना मोना, सफाई करना, इसको तैयार करना, और बाकी उसका काम था आगे उसको बेचना। अच्छा, तुम कहाँ पे सर्विस स्टेशन था तुम्हारा? हमारा पेशावर रिंग रोड के ऊपर। पेशावर रिंग रोड पे जी। ऑफिस तुम्हारा वो रिंग रोड सर्विस? से, जी। अच्छा, तुम्हारे पास गाड़ी कौन कौन सी आती थी? गाड़ी हमारे पास ये अल्टस आती थी, ये होंडा और ये फॉर्चूनर, और वो गाड़ियां जो बहुत महंगी हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो आती थी तुम्हारे पास? हाँ, बहुत महंगी महंगी गाड़ी आती थी सर्विस में। अच्छा, तो वो सैफुर रहमान को कभी मिले हो? जी हाँ, मिला उसके साथ। वो तुम्हारे पास खुद गाड़ी लेके आता था? वो कभी खुद लाता था, कभी बेचता था किसी बंदे के हाथ, लेकिन बंदा वो था जिसको मैं जानने वाला नहीं था। अच्छा, तुम गाड़ी तुम्हारे पास आ जाती थी, तुम उसको सर्विस करते थे, उसमें से कोई चीज़ें वीज़ें निकालते थे, क्या करते थे? जो चीज़ें मीज़ें तो बस वो सिर्फ हमारा इतना काम होता कि गाड़ी को सही साफ करना, अच्छा, और जो सफाई मफाई का काम होते वो हम करते थे बस। पुलिस ने तुम्हें पकड़ा, तुम रिसीवर थे उसके, सैफुर रहमान के। बिल्कुल जी। तो फिर आगे कहाँ लेके जाते थे गाड़ियाँ? आगे का मुझे कभी सर्विस से बाहर निकलना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सर्विस में बहुत काम होता है। नहीं, तो सर्विस स्टेशन पे जब गाड़ी आ जाती थी तो तुम्हारे से कोई तो लेके जाता होगा, या तुम किसी को भेजते होगे? बंदा हमारा कोई जान इस तरह बंदा हमारे पास कभी नहीं आया जिसको मैं जानता हूँ। अच्छा, जी। तो कितनी गाड़ियां तुम्हारे पास अब तक आ चुकी हैं? गाड़ी बहुत सारी आई, मैं तुझे क्या बताऊँ सर जी। हम कह सकते हैं कि अरबों रुपए की गाड़ियां थी जो आई। बिल्कुल कह सकते हैं। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे थे? ये तकरीबन मेरे सर्विस में 5-6 महीने से गाड़ी लाता है। 5-6 महीने जी, से? इसके साथ। तो तुम पकड़े गए थे पेशावर जेल में, अटक जेल में थे, कहाँ पे थे? नहीं, जब मैं पकड़ा गया तो मेरे पास एक गाड़ी आया था सर्विस के लिए, उसमें ट्रैकर था, इस्लामाबाद का था वो। अच्छा, फिर इस्लामाबाद वालों ने मुझे पकड़ा, वो पर्चा मेरे ऊपर डाला, तो मुझे अडियाला छोड़ के गया। अडियाला ने इन लोगों अडियाला जेल में थे? तो जी, अडियाला जेल से लाहौर वालों ने निकाला, इजाज़ ईसाई ने। अच्छा, वो तुम्हें इधर ले आए। तो अब ये बताओ कि तुम्हारे पीछे आया सैफुर रहमान या नहीं, तुम्हारे मेरे गैंग के पीछे लोग आए? कोई मेरे पीछे नहीं आया। तुम्हारा कहाँ से ताल्लुक है, कौन से मेरा शहर से? पेशावर से। पेशावर से? पेशावर से, बेसिकल पेशावर का। तो पेशावर में क्या करते थे पहले? पहले भी सर्विस का काम होता है हमारा, सर्विस स्टेशन का पहले काम जी, था? पहले से लेकिन तुम सर्विस। रिसीवर बन गए, कितने पैसे बस। मिलते थे तुम्हें? बस हमें सर्विस का पैसे मिलता था, वो कभी बस तो थोड़ा तुमने कभी देखो, तुम इतने समझदार आदमी हो, सर्विस स्टेशन चला रहे थे, तुम्हें ये नहीं पता चलता था कि एक आदमी कभी कोई गाड़ी तुम्हारे पास ले आता है, कभी कोई गाड़ी तुम्हारे पास ले आता है? तो तुम अगर इतने मासूम थे तो तुमने पुलिस को नहीं बताया कभी? सर जी, हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते, शोरूम वाले आते, वो अजीब अजीब किस्म की गाड़ी लाते। सर्विस में किसी का कोई पता नहीं लगता कि ये चोरी के, डकैती के, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, सर्विस वाले को कोई पता नहीं चलता। अब तो तुम पकड़े गए हो जी बिल्कुल। और पुलिस का कहना है कि तुम सैफुर रहमान के जी बिल्कुल। रिसीवर हो। जी। तुम गाड़ियां उसकी तुम्हारे पास आती थी, तुम उसको साफ सुथरा करके, धो के, वॉश करके उसमें से कीमती सामान भी निकालते थे, फिर तुम आगे जाके किसी को भिजवाते थे। ये तो पुलिस ने तुम्हारे ऊपर फिट कर दिया है, तो तुम कह रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है। तो बस इनका कहना है, बस क्या कहे सर जी। तो सर्विस स्टेशन में कितने लोग काम करते थे तुम्हारे साथ? मेरे साथ तकरीबन 4-5 मजदूर हर वक्त काम करते। तो उनको कितने दिहाड़ी देते थे? उसको तकरीबन कमीशन के हिसाब से उसको तो रखते। सर्विस स्टेशन तुम्हारा था, तुम मालिक हो? जी, मैं वो ठेके पे मैंने लिया था। कितने ठेके पे लिया था? तकरीबन 50,000 रुपये हम उसका खरीद देते महीने का? महीने का। तो इतनी आमदन हो जाती थी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर्विस में काम बहुत है। तकरीबन दिन में हम 35, 40, 25, 30 इस तरह गाड़ियाँ सर्विस करते। अच्छा, सैफुर रहमान को जानते हो? कितना बड़ा कार चोर है वो? जी बिल्कुल, उसको जानता हूँ। कितनी गाड़ियाँ उसने चोरी की हैं, कुछ अंदाजा है तुम्हें? उसका अंदाज़ा जी मुझे तो नहीं है कि कितनी चोरी की। घर वालों को पता चल गया कि तुम लाहौर पुलिस के पास हो? जी, हमारे घर वालों को पता है। आए हैं पीछे? नहीं, कोई पीछे नहीं आया। कोई पीछे नहीं आया? गरीब लोग हैं जी हम। गरीब लोग हैं? जी तो फिर गरीब हो के ऐसा काम शुरू कर दिया? बस। रिसीवर हो सैफुर रहमान के? जी बस। बताओ। आओ जी आओ। तो फिर जुर्म तो करते रहे हो तुम? बस अल्लाह माफ़ी दे। अब माफ़ी चाहते हो? बिल्कुल, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़े। आपने सुना मुलजिम का बयान। उसका ये कहना था कि सैफुर रहमान जो बहुत बड़ा कार चोर है, और ये वो कार चोर है जिसने
कीलेस गाड़ियों को हमेशा चोरी किया है, जिसकी तादाद 200 से ज़ायद बनती है और अरबों रुपए मालियत की वो गाड़ियां हैं। उसका ये रिसीवर था। इसे अडयाला जेल में रखा गया था। वहां से लाहौर पुलिस AVLS यूनिट जो है वो उसे लेकर आया। DSP AVLS सदर डिवीजन मेहंदी काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। कार चोर बहुत बड़ा एक गैंग जो है वो गिरफ्तार किया है, जो शहरियों की ज़ाती सवारी से उनको महरूम करता था। काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कौन सा गैंग ऐसा है जो आपने गिरफ्तार किया? तो ना बड़े हाई प्रोफाइल मुलजमान हैं इसमें। जी सर, इस वक्त हमारे पास 2 गैंग के मुलजमान हैं, जिनमें से 2 तो कार चोर है और एक रिसीवर है उनमें से। और जो रिसीवर है उसके हमारा ही साथी पहले हमारे पास कुछ पकड़े हुए हैं और कुछ पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। अच्छा जी सर। काजमी साहब, जो कार चोर हैं उनके भी पुलिस मुकाबले हो जाते हैं, ये भी मज़ामत करते हैं? जी सर, ये एक बड़ा डेस्परेट गैंग है जिसने हसासदारों के कुछ अफसरान भी शहीद किए हैं, कुछ अच्छा। SHO शहीद किए थे। अच्छा जी सर, एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे मोटरवे के, उनके भाई को शहीद किया था उसने। अच्छा, तो ये बड़ा डेस्परेट गैंग था। ठीक है। तो ये क्या वारदात किस तरह से करता था? ये जो है वो गन पॉइंट पे कारें छीनते थे, चोरी करते थे। इनकी थोड़ी तफसील बताएं कि ये काम किस तरह से करते थे, चोरियां कैसे ये करते सर ऑलरेडी ना इस पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर चुके हैं वैसे, लेकिन ये कीलेस गाड़ियों के चोर थे। अच्छा, जो नई मॉडल्स की गाड़ी हैं। नए मॉडल की गाड़ियाँ जिनको कीलेस गाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ था कि वो गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ के ना, जिसको हम ऐनक बोलते हैं पुलिस वर्ड में, या ये चोर भी उसको ऐनक बोलते हैं। अच्छा, ऐनक तोड़ हाँ, वो जो पिछली साइड का जो शीशे के साथ छोटा सा टकोनी शीशा होता है, बिल्कुल होता ये है। उसको ऐनक बोलते हैं। ठीक है। वो तोड़ के ये पिछला दरवाज़ा खोल लेते थे। ठीक है। दरवाज़ा खोल के फिर इनके पास कंप्यूटर होता था, ये गाड़ी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसको अटैच कर देते थे। ठीक है। अटैच करने के बाद वो गाड़ी, इनके पास चाबी होती थी अपनी। अच्छा, तो इन्होंने वो सारा सिस्टम कंप्यूटर ने रीड करके तो उस चाबी में शिफ्ट कर देना होता था। ठीक है। तो फिर वो चाबी इस्तेमाल होती थी, जो मालिक के पास ओरिजिनल चाबी होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, गाड़ी उसको पहचानती नहीं थी। अच्छा, मतलब वो उसका डिसेबल हो गए, वो डिसेबल हो गए। ठीक है। हाँ, तो वो गैंग था, ये बड़ा हाई प्रोफाइल था। लाहौर में एक खातून को लेके अगवा भी करके फिरते रहे सड़कों पे, ये वो वाला गैंग है। हाँ, जो पुलिस इनकाउंटर जिसका हुआ, ये लाहौर पुलिस के क्रेडिट पे है कि हमने कीलेस गाड़ियों के तमाम मुलजमान सबसे पहले हमने पकड़े हैं। गुड। उससे पहले हम लोग समझते ये थे कि कीलेस गाड़ी चोरी नहीं होती, और जो कोई मुकदमा दर्ज कराने आता था हम समझते थे कि ये झूठा मुकदमा दर्ज करा रहा है, इस तरह तो गाड़ी चोरी नहीं हो सकती, जब चाबी के बगैर तो गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो जब ये लोग पकड़े गए हैं तो फिर ये सिस्टम बना। उसमें हमने फनान खान था, अब्बास खान था, फिरोज था, ये काफ़ी सारे लोग हमने पकड़े थे जो कीलेस गाड़ियों का काम करते हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त कीलेस गाड़ियों के तमाम मुलजमान हमने पकड़ के जेलों में भेजे हैं या कुछ मारे गए हैं। ठीक है। हाँ। तो मेहदी साहब, ये जो आपके पास इस वक्त रिसीवर है, जिसको चोरों की ज़ुबान में या पुलिस की ज़ुबान में रिसीवर कहा जाता है, जो इस्लामाबाद से आपने गिरफ्तार किया हुआ है, ये एक सर्विस स्टेशन पे काम करता है, मतलब ठेकेदार है। इसका क्या किरदार था, इसके हवाले से? सर, जितने वो एक्चुअल जो रिसीवर है ना, मेन रिसीवर, उसका नाम है सैफुररहमान, सैफूर खान उसको बोलते हैं। ठीक है। पेशावर का रहने वाला है। हमारा वो मुजरम इश्तेहारी है, हमने वहाँ रेड की है, वहाँ जाके ना। ठीक है। पेशावर की पुलिस की मदद से हमने उसके घर पे रेड किया था, वो मिल नहीं सका हमें। ठीक है। शुनीर यही है कि वो अफगानिस्तान भाग गया हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान में होने की इत्तला है उसकी? जी सर। ठीक है। तो ये उसका फ्रंट मैन था, इसने सर्विस स्टेशन लिया ही सिर्फ इस काम के लिए हुआ है। अच्छा। वो उसके जो मतलब रिसीवर है ना सैफुररहमान, ये चोर यहाँ चोरी करके गाड़ियाँ ये छीन लेते थे, ये चोरी कर लेते थे। ठीक है। तो ये पीछे से ड्राइवर मंगवाते थे, वो ड्राइवर आके गाड़ियाँ जाके इसके सर्विस स्टेशन पे खड़ी करते थे। ठीक है। ये गाड़ियों को साफ करके जो कीमती चीज़ें उतारने वाली हैं या लगाने वाली हैं, अच्छा। ये रेडी टू परचेज या सेल करके ना उस गाड़ी को, तो सैफुररहमान जहाँ कहता था ये गाड़ी वहाँ पहुँचा देता था। ठीक है। क्योंकि वो बड़ा आदमी, चोरों का बड़ा आदमी था। अच्छा, चोरों में बड़ा था? चोरों में बड़ा था। वो फ्रंट नहीं, सामने नहीं आता था किसी के। अच्छा। तो उस ये सिर्फ इसके साथ उसका राब्ता था ठीक कि है। गाड़ी वहाँ आ जाए, अगर पकड़ा जाए तो ये पकड़ा जाए।
ओके, वो ना खुद ना पकड़ा जाए मौके ठीक पे। है। तो वैसे वो कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, सैफ जो है सैफ नहीं पकड़ा गया जी अभी। आज तक नहीं पकड़ा गया। नहीं, वो मेल रिसीवर है, कभी पकड़ा भी गया है, ठीक है, लेकिन अभी जब से वो बड़ा हाई प्रोफाइल हुआ है तब से नहीं तब पकड़ा से वो नहीं पकड़ा गया। अच्छा, तो ये गाड़ियां फिर आगे शिफ्ट करता था, उसमें से कीमती सामान निकालना। ये जो रिसीवर है ये वाला, ये बड़ी गाड़ियां थी, फॉर्चूनर, वीगो डाले, रॉको और ग्रैंडी, होंडा सिविक गाड़ियां नए मॉडल्स की, ठीक है, वो सारी इसी के पास जा रही थी। ये आगे जहां वो कहता था कि ये इसको पहुंचा दो, कुछ गाड़ियां टेम्पर हो जाती थी और कुछ गाड़ियां जो हैं वो वैसे ही इलाका गैर में फरोख्त कर देते थे सर। ठीक है। और सुनीत तो ये भी है कि कुछ गाड़ियां, चूंकि ये सारी 22 मॉडल की गाड़ियां थी, तो ये कोई डॉक्यूमेंटेशन उनकी जाली बना के कोई एक आध नंबर पंच करके ना ठीक ये है। दोबारा भी रजिस्टर करवा रहे हैं गाड़ी। ठीक है, हाँ, एक ये भी इतला है सर। ठीक है। अच्छा काजमी साहब, ये जिस तरह आपने बताया कि कीलेस जो गाड़ियां हैं ये वो चोरी करता है गैंग, तो कोई मुताद अंदाजे के मुताबिक बता सकते हैं कि कितनी मालियत की गाड़ियां इन्होंने लाहौर से या पाकिस्तान के दीगर शहरों से चोरी की होंगी? ये सर जो अभी हमने गैंग कुछ जुडिशियल करवाए हैं और वो अब्दुल्ला जो मारा गया है सर, आप ये देख लें कि वो सिर्फ पंजाब से 200 के करीब गाड़ियाँ ले गए हैं। 200 के करीब? हाँ, ठीक है, कुछ फैसलाबाद की, कोई गुजरावाले की, कोई लाहौर की, ठीक है, हाँ, इस्लामाबाद की, जहाँ से उन्हें मौका मिलता है वो गाड़ी ले जाते हैं। ठीक है। जिधर पुलिस ज़्यादा एक्टिव हो जाती है वहाँ से निकल के ये किसी दूसरे ज़िले में चले जाते हैं। तो ये गाड़ियों की कीमत अगर 200 गाड़ियों को हम करें जमा तफरीक इसका, तो ये अरबों में चली जाएगी, क्योंकि आजकल तो छोटी सी गाड़ी भी जो है 20-25 लाख से कम नहीं। ना सर ना, जो ये गाड़ियाँ अच्छी हैं वो तो करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की गाड़ी है, और कुछ भी नहीं है तो होंडा और ग्रैंडी तो 60-70 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ हैं ये सारी। तो अरबों रुपए की गाड़ियां इन्होंने Definitely। चोरी की हैं। अच्छा काजमी साहब, ये बताएं जो दूसरा गैंग पकड़ा गया है उसके 2 अरकान हैं, ये किस सर लेवल के चोर हैं और क्या तरीका वारदात है, कितनी दफ़ा पकड़े गए, कितनी दफ़ा गिरफ्तार हुए, जेल गए, क्या इनकी? सर हमारे डिवीजन में ना, जब पहले तो ये नई गाड़ियाँ थी ना, तो वो हमने पकड़ लिए बंदे, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्राइम गाड़ियों का जो है ना बहुत डाउन हो गया था। ठीक है। तो फिर ये पुराने मॉडल की गाड़ी चोरी शुरू हो गई। अच्छा, पुराना मॉडल आप कह लो 12, 13, 14 तक हम पुराना मॉडल समझते हैं गाड़ियों का। ठीक है, तो उस पर हमने वर्क किया, तो हमने उस्मान गनी को पकड़ लिया और एक और इश्तिहारी था हमारा, ठीक वो है, मुजरम इश्तिहारी ऑलरेडी डिक्लेयर था, ठीक है, नॉमिनेट हो चुका था लेकिन गिरफ्त में नहीं आ रहा था, सुल्तान। ठीक है, इसको पकड़ लिया। सुल्तान का एक साथी है वो ऑलरेडी दुबई फरार हो चुका है। अच्छा, हाँ, ये जितने बड़े कार चोर हैं ना, इन्होंने अपना दुबई में भी कईयों ने सेटअप बनाया हुआ है अच्छा, कि जब यहाँ से पुलिस ज़्यादा उनके पीछे पड़ जाती है तो फिर ये कतर या दुबई चले जाते हैं। ठीक है, उसका हमने कोशिश कर रहे हैं उसके रेड वारंट जारी करवा के उसको ट्रांसफ़र करवाने की सर। तो ये गाड़ियाँ चोरी कर रहे थे, कभी कहीं सदर डिवीज़न को इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ था, ठीक है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस्मान गनी बहुत पुराना कार चोर है, 100 से ज़्यादा मुकदमात में ये चलान हो चुका है, ज़्यादा है मुकदमात। अच्छा, 100 से जायद हाँ, मुकदमा। उसका मैं आपको CRO रिकॉर्ड भी देता हूँ ठीक है, जिसमें इसके मुकदमात की तफसील लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हर दफ़ा ही बेल आउट हो जाता है। अच्छा, हाँ। क्या वजह है कि इतनी वारदातें करने के बावजूद ये आसानी से जेल से निकल आते हैं? कहीं ना कहीं तो कमी है ना, हाँ, मतलब मैं किसी का नाम लेके किसी को क्यों कहूँ। कुछ सर ये है कि हमारे एंड पे भी कोई ना कोई कोताही होती है, तफ्तीश में कोई कमी रह जाती है, लेकिन आगे उसके आगे प्रोसिक्यूशन है, उससे आगे अदालत है। कुछ हमारे सिस्टम है ऐसा है कि हम वो ना सही तरह उनको सज़ा नहीं दिलवा पाते। अच्छा, ये कमियां जब तक दूर नहीं होगी या ये सारे शोबे जब तक एक पेज पे नहीं आते, उस वक्त तक इन लोगों का कला कमा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा काजमी साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो चोर कई सालों से गाड़ियां चोरी कर रहा है, मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा है, वो बार बार पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, किसी भी वजह से वो बाहर आते हैं तो फिर वही काम वो दोबारा करते हैं, या नए चोरों या नए गैंग्स का भी इजाफा होता है? जो हर चोर है ना सर पुराना, वो हर दफ़ा जेल से एक नया दोस्त लेके आता है वहाँ से। अच्छा, वो नया गैंग बनाता है क्योंकि उसको पता है कि पुराने लोग तो मुझे पकड़वा देंगे। इस खौफ से उसने हर दफ़ा अपने साथ एक नया बंदा बनाना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, तो ये इजाफा ही हो रहा है, वो कमी तो नहीं हो रही है।
डीएसपी की आपने बात सुनी, उनका ये कहना था मेहदी काज़मी का कि जो चोर हैं वो बार बार पकड़े जाते हैं और जेल में भी जाते हैं और हर दफ़ा एक नया गैंग बनाकर फिर वही वारदातें करते हैं। खामियां और कोताहियां हर शोबे में होती हैं, जिसकी वजह से ये चोर मुस्तकिल तौर पर वो सज़ा नहीं पा पाते हैं जिसके ये हकदार हैं। एसपी एवीएलएस राना जाहिद हमारे साथ हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, बड़े बड़े जो चोर हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ियों के गैंग, वो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या वजह है कि ऐसे कई मुलजमान जो गिरफ्तार होते हैं 15-15 साल से एक ही काम करते हैं, 2 साल बाद 1 साल बाद वो जेल से रहा हो जाते हैं, फिर आकर वो वही काम करते हैं और एक आम आदमी की सवारी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे गाड़ी हो, वो चोरी करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें ना हमें एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस जो है वो एक कंपोनेंट है। इसमें हमारी जुडिशरी भी है, प्रिजन्स भी हैं, फिर इसमें सबसे अहम जो किरदार है वो एक कंप्लेनेंट का भी है। ठीक है, मैं ये सारा बर्डन कंप्लेनेंट पे शिफ्ट तो नहीं करता, लेकिन एक कंप्लेनेंट की जो इंटरेस्ट है वो उसके अपने माल मसरूका या स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी की हद तक है। उसके बाद से वो एक कह लें कि एक ज़िम्मेदारी बहैसियत शहरी अदा करने के लिए किसी हद तक वो रिलक्टेंट है कि वो उसको ना पढ़े। उसमें ज़ाहिर है कि कोर्ट्स में भी ज़ाहिर है कि एक दिन में तो ट्रायल मुकम्मल नहीं होता, तो कुछ ट्रायल को कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है। उसके ट्रायल की जो ड्यूरेशन है वो उसको कई दफ़ा कई कंप्लेनेंट्स को थका देती है। तो अगर आप देखें तो अदर देन मर्डर केसेस या हर्ट या जिसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, जिसमें उसका एक पर्सनल वेंडेटा है, उसके अलावा तो वो इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता कि किसी भी क्राइम को वो फॉलो करे। तो पुलिस तो अपना केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देती है। पहला तो ये एक आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट उसमें यह है कि पुलिस के जो केस कोर्ट में प्रेजेंट करती है उसमें तमाम आईओज़ का क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें भी कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक चोरी की एफआईआर है और इसमें कोई आई विटनेस अकाउंट जो है बहुत कम केसेस में होता है। तो जिन केसेस में तो आई विटनेस अकाउंट है या सीसीटीवी फुटेज कैमरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है और उसको फिर हम पीएफएसएल लैब से उसको वेरीफाई करवा लेते हैं कि ये मुलज़म वही है जो हमारी इस वीडियो फुटेज में नज़र आ रहा है, उसके लिए फोटोग्रामेट्री टेस्ट है और दीगर हैं, तो उसमें तो एक सॉलिड एविडेंस आ जाती है कि ये थेफ्ट से रिलेटेड जो एविडेंस है वो उस केस फाइल में मौजूद होती है। तो वो फिर हम कोर्ट को बेटरली कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि यही चोर है। बाकी अगर आप इन चीज़ों के अलावा कि जिसमें आई विटनेस अकाउंट नहीं है या सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो फिर सिर्फ रिकवरी जो है किसी भी केस में वो उसकी कोई सज़ा याबी के लिए कोई इतना सॉलिड प्रूफ नहीं है। वो 411 की हद तक तो है कि जी इससे रिकवर्ड हुई है एक स्टोलन प्रॉपर्टी, तो वो फिर उसमें कई दफ़ा बेल भी वो एक बेलेबल ऑफेंस है और उसमें सज़ा भी फिर उसी हिसाब से होगी। तो हमें बेसिकली क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और फिर सबसे अहम फिर वही बात है कि उस केस को जब हम प्रूव करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो एक कंप्लेनेंट का है जिसने उसको परसू करना है। और कोर्ट में देखें जो कंप्लेनेंट है वो थ्रू स्टेट कोर्ट तक जा रहा है, यानी हम उसको असिस्ट करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसका केस तैयार करते हैं, उसकी तमाम एविडेंसेस हम सफ़ा मिसल पे लाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में जिनमें केसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पे फिर वो कंप्लेनेंट साइड पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये एक कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से ओवरऑल जो कन्विक्शन रेट्स हैं वो उस तरह नहीं है एज पर डिजायर्ड जैसे होने चाहिए। अच्छा राना साहब, क्योंकि जब चोरी होती है, गाड़ी चोरी हो या मोटरसाइकिल चोरी हो, तो कंप्लेनेंट यकीनन उसमें एक ही तरह की तहरीर होती है कि मैं गाड़ी खड़ी करके गया, वापस आया तो गाड़ी नहीं थी जी। उसमें विटनेस नहीं होते हैं। लकीली अगर कोई सीसीटीवी फुटेज बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाए जिसको आप कह रहे हैं कि बतौर एविडेंस आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या फिर इसमें कोई पुलिस के एंड से या अदालत के एंड से कुछ तरमीम की ज़रूरत समझते हैं आप? है सर, उसमें तरमीम से भी ज़्यादा ये है कि मैं भी आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये पैगाम देना चाहता हूँ सोसाइटी को। देखें, चोरी सरे बाज़ार हो रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, और उसको चोरी करते हुए भी चाहे उस वक़्त ना किसी को पता हो कि ये चोर है, लेकिन उसको तो कई बंदे देखते होंगे गाड़ी ले जाते हुए।
अब वो जो हमारी सोसाइटी में जो आम आदमी है, जो एक जिसको हम पब्लिक कहते हैं, वो उस केस का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस केस में आगे गवाही दें। अदरवाइज़ तो वो अगर एज ए विटनेस तैयार हो जाएं तो हम उनके थ्रू आइडेंटिफिकेशन परेड्स करके तो केस को बहुत मजबूत किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारा एक जनरल एक बिहेवियर है कि जैसे ही आईओ वहाँ पे पहुँचता है और मुलाज़ा मौका के दौरान कोई आई विटनेस ढूंढने की कोशिश करता है तो वहाँ पे कोई भी बंदा इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता। और कुछ नोटिस वैसे भी हर कोई अपने काम में होता है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें आई विटनेसेस जो हैं वो इवन थेफ्ट में भी ऐड करने चाहिए ताकि वो चीज़ों को प्रूव करने में ज़्यादा मदद मिले। अच्छा राना साहब, जो चोर हैं उसके मुख्तलिफ ग्रुप हैं। कुछ चोर हैं जो कीलेस गाड़ियों को, महंगी गाड़ियों को चोरी करते हैं, कुछ हैं पुरानी गाड़ियों को चोरी करते हैं और उनका कुछ तरीका वारदात भी है। इस तरह के ग्रुप्स कितने होंगे लाहौर में, क्योंकि इस कदर गाड़ियाँ चोरी हो रही है। यकीनन AVLS उसको रिकवर भी करता है, जिनकी गाड़ियाँ चोरी होती हैं उन्हें मिलती भी हैं, बाइक्स भी मिलती हैं, लेकिन वारदातों की तादाद ज़्यादा है। तो कितने ग्रुप्स होंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं और इनके कनेक्शन कहाँ तक होते हैं? हाँ देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो कीलेस गाड़ियों की चोरियों में इन्वॉल्व थे मुल्ज़िमान, वो एक तो मेरे से पहले एक गैंग स्मैश कर दिया गया था। उसके बाद एक बड़ा नोटोरियस गैंग था जिसने ना सिर्फ कीलेस गाड़ियाँ चोरी की बल्कि उनको स्नैच भी किया। तो उसमें भी मेजर हमारा ब्रेक थ्रू हो चुका है। एक मुल्ज़िम हम गिरफ़्तार कर चुके हैं। एक KPK में दौरान पुलिस मुकाबला जो है वो मारा जा चुका है। और भी इसी तरह एक और भी बन्नू में उन्हीं का एक रिसीवर था, वो इस इनकाउंटर एक और में वो भी हलाक हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की तो अभी तक ज़ीरो स्नैचिंग है पूरे लाहौर की, मैं आपको बता रहा हूँ। बल्कि ये इस महीने नहीं, इस महीने से पिछले महीने भी, जब से ये गैंग स्नैच हुआ है लाहौर में, पिछले 1.5 महीने से कोई गाड़ी स्नैच नहीं हुई। एंड मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा साया ऑफ रिलीफ है लोगों के लिए। लोग लाहौर में एटलीस्ट अपनी फैमिलीज़ और अपने बच्चों के साथ विदाउट एनी डिस्पेयर कि कोई गाड़ी खुदा न खास उनसे स्नैच होगी। तो वो जिससे ये एक चीज़ है मेजर, तो वही गैंग था। बाकी रहेगी बात कि इन जो वही लड़के जो थे वो जहाँ पे ज़ाहिर स्नैच करते थे, जहाँ पे उनको पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती थी कि वो चोरी कर सके, तो वो स्नैच भी कर लेते थे। तो उसी प्रोपोर्शन से जो महंगी गाड़ियाँ या जो कीलेस हैं या जो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वो निस्बतन उसकी भी तादाद बहुत कम है। जो अभी इस महीने भी जो हुई हैं 4, 5, 6 वो, तो उसमें भी वो डाउन मॉडल्स हैं जो कि पुराने मॉडल हैं। ठीक है। तो वो नए मॉडल की गाड़ियाँ अभी उसकी थेफ्ट और स्नैचिंग पे तो एक चेक लग चुका है। फिर हमारे पास इस वक्त सदर डिवीज़न में भी बहुत, हमने तो 3 मेजर जो कार चोर थे उसमें वो पकड़े हुए, और प्लस उसके 2 रिसीवर भी हमने उसको भी काबू किया हुआ है। इसी तरह दीगर डिवीजन्स में भी एक अच्छी खासी तादाद है जो हमने की हुई है और हम फ्लैश भी कर रहे हैं उसको। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। बाकी रहेगी बात वही कि ये कांस्टेंट एक है जी एफर्ट है, क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला ये रूल चलेगा। ज़ाहिर है कि यहाँ से जब ब्रेक लगेगी तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, तो फिर ज़ाहिर है फिर हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनके साथ एक कॉम्बैट करेंगे उनको। इंशाल्लाह ताला अगर आपका जज्बा है, आपकी नीयत है और आप करना चाहते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और इंशाल्लाह हम लोग आपको सिक्योर करेंगे। ये हमारा अज़म भी है और हम इसमें मेहनत पूरी कर रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम जुर्म और अंजाम, जिसमें आपने देखा कि करोड़ों रुपए मालियत की चोरी करने वाले कार चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक गैंग ऐसा भी है जो अरबों रुपए की गाड़ियां चोरी कर चुका है, उसके भी एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। नई कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।